So in our previous class, we were discussing about the mitosis and meiosis. Okay. So in meiosis, okay, meiosis में एक सेल डिवीजन के बाद कितने सेल्स बनते हैं? Sir, please pardon. In meiosis, after one cell division, that So is, 4 cell. you should get 4 cells. In सर mitosis, पहले का दो फेज रहता है सर, एक फेज 1 और फिर सर फेज 2। फर्स्ट फेज में सर हाँ 2 होता है और सेकंड फेज में 4। हाँ लेकिन ये सब चीज हम लोग क्वेश्चन ये रहेगा कि माइटोसिस के एक डिवीजन के बाद कितने सेल्स बनते हैं? सर 4। तो माइटोसिस के 2 सेल बनेंगे और मियोसिस के 4 सेल बनेंगे। ओके, मियोसिस में 2 फेजेस हैं, वो सब ठीक है, लेकिन क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी है। आफ्टर मियोसिस, okay, after meiotic cell division, how many cells are produced? 4. ओके, उसमें ये नहीं बोल देना क्योंकि मियोसिस 1 में पहले 2 बनता है फिर उसके बाद 4 बनता है इसीलिए पहले तो 2 ही आया, वो सब में कंफ्यूज नहीं, क्वेश्चन समझना चाहिए। ओके, meiosis division, after meiosis division how many cells are produced? 4 cells are produced. After mitosis how many cells are produced? 2 cells are produced. One cell will divide into 2 cells in mitosis. In meiosis one cell will produce 2 cells and these 2 cells will again divide to form total of 4 cells. Okay, so in meiosis we say that after meiotic division 4 cells are formed. The chromosome number in meiosis, okay, after meiotic division, the chromosome number it is remains same, doubled, halved, none of the above. What is the answer? After Sir, meiotic half. becomes a half. Anyone else? So you asked something. After meiotic division, the chromosome number, whether it will remain same, it is doubled, it is halved, or none of the above. Double. Double. This is who is telling this one? हेडफोन काम नहीं कर रहा था सर, अभी लगाया। सर क्या पूछ रहे थे सर? Prince is telling. Okay. नो सर, हम नहीं बोल रहे हैं, अब हम कुछ बोले नहीं है। Okay. सर हम तो अभी आए। Question I have written on the screen. It is coming now. Screen is shared, right? यस सर, अभी देखे सर जस्ट। After meiotic division, the chromosome number remains same, doubled, halved, none of the above. सर हाफ। Ayush 1. आयुष बोलिए। सर हाफ। हाफ। बाकी सब प्रियतोष, जय, हाफ सर हाफ। सभी लोग हाफ बोल रहे हैं ना? तो हाँ सर, अभी तो हाफ बोले। मियोटिक, यस, तो मियोटिक डिवीजन में क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है। इसको ऐसे भी पूछ सकते हैं कि
जो इसका नॉर्मल क्रोमोसोम नंबर है वो 2n है. meiotic division, after meiotic division what will happen, whether it will be 2n, 4n, n and anything else, none of the above. Okay, in this way also it can be asked. So then what you will do, because it was 2n earlier, when you half it will become n. So after meiosis it will be n. Okay. So let us continue with some of the questions. Okay. During the pairing of chromosomes in meiosis, the dash chromosomes come to lie side by side. Who is this one, Abba? Abraham Benjamin de Villiers. We can ask. Is it? सर वो तो क्रिकेटर है ना सर. सर वो तो क्रिकेटर है ना. So Abraham Benjamin. सेलिब्रिटी के पास भी जाता है क्या? Abraham Benjamin de Villiers. आयुष टू हो गया. का तो आईपीएल चल रहा है ना, तो यहाँ क्या करने आ गया है? आयुष टू, आर यू आयुष टू? सर प्रणय होगा सर. प्रणय? दूसरे क्लास में भी था. सर वो ज्वाइन कर क्लास में. प्रणय बेंजामिन डिविलियर सर होगा कुछ. हाँ सर. कुछ बोलो भैया. बेंजामिन कुछ बोल नहीं रहा है. आईपीएल बंक कर रहा है. किक, डायरेक्ट किक. स्विच ऑन योर कैमरा. देखिए, यू हैव टू, यू सी, आपका तो रेगुलर ऑनलाइन क्लास भी चलता है ना. जब ऑनलाइन क्लास चलता है तो यू आर यूजिंग डिफरेंट लॉगिन आईडीज और व्हाटएवर, नो, बट यूज योर नेम. नो, व्हाई यू आर गिविंग ऑल दिस काइंड ऑफ फैंसी नेम्स? देन इट इज डिफिकल्ट फॉर मी आल्सो टू आइडेंटिफाई, नो, हु इज हु. So why are you not speaking? सर आज मौन व्रत रखा है. Come on, say something. Otherwise, I will have to delete, remove from meeting. Come on, quick. We can't waste time. Sir, remove this cricketer. Okay, we cannot tolerate so much of time waste, right? So, during the pairing of chromosomes in meiosis, the dash chromosomes come to lie side by side. Identical, sir. See, So I'm not understanding this question, sir. Yes. In metaphase, how it is coming? Either you draw like this or you draw like this, whatever. आपके टेक्स्ट बुक में ऐसे बना हुआ है ना, ऐसे बना हुआ. जो भी है सभी क्रोमोसोम्स एक इक्वेटोरियल मेटाफेज प्लेट में है, लाइन में. Here the question is during pairing of chromosomes in meiosis. So am I drawing the right figure? I am drawing metaphase, no? Yes, sir. But Sir, homologous. नहीं सर, डीएनए तो सिंथेसिस फेज में डबल. अच्छा, मियोसिस है. नहीं, मियोसिस. हाँ सर, क्वेश्चन आप फिर से एक बार देखिए क्वेश्चन को. ड्यूरिंग द पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम्स इन मियोसिस, द डैश क्रोमोसोम्स कम टू लाई साइड बाय साइड. तो हम लोग ने पिछले क्लास में डिस्कस किया था, इसी क्वेश्चन के इसमें हम लोग डिटेल में गए थे. तो
यहाँ पे क्या हुआ है कि इन मियोसिस तो हमने देखा कि एक क्रोमोसोम में कितना क्रोमैटिड है इन द फॉर एग्जांपल प्रोफेज का जब हम लोग क्रोमोसोम बनाते हैं सर 2 क्रोमैटिड्स। हाँ, तो प्रोफेज में जब क्रोमोसोम बनाएंगे तो हम लोग ऐसे बनाते हैं जिसमें कि बीच में सेंट्रोमियर है, ओके, और ये एक क्रोमैटिड है and during S phase this got duplicated, okay, this got duplicated. So both of these chromatids are sister chromatid. chromatids, okay. For example ये अगर क्रोमोसोम 1 है तो एक और क्रोमोसोम 1 होगा सेल के अंदर, यस और नो? सर प्लीज पार्डन। This is chromosome 1 for example. Will the cell have another chromosome 1? नो सर। नहीं सर, सर क्रोमोसोम 2 होगा। सर वो क्रोमैटिड कहलाएगा। देखिए यही तो हम लोग को समझना है, ये मैं कल आपको उस दिन भी देखिए, ये एक क्रोमैटिड मदर से आता है और एक क्रोमैटिड फादर से आया, ओके। देन देयर इज डबल, नो, क्रोमोसोम 1 का 2 कॉपी है, इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं 2n। लेकिन वही जब हम लोग गैमिट में लेते हैं, ओके, इन गैमिट्स इट इज ओनली हैप्लॉइड, सो या तो मदर का रहेगा या तो फादर का रहेगा, कोई एक ही सेट रहेगा उसमें, ओके। ये जो नॉर्मल सोमैटिक सेल है वो तो 2n है ना, उसमें तो दो क्रोमोसोम्स, हर के दो क्रोमोसोम्स रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल क्रोमोसोम 1 है तो एक सेट मदर का रहेगा, एक सेट फादर का रहेगा। नाउ यू आर अंडरस्टैंडिंग? फॉर एग्जाम्पल यू टेक स्किन सेल, हम लोग का स्किन सेल है, स्किन सेल को अगर आप लेंगे और उसके अंदर जो डीएनए है, ओके, प्रोफेज 1 डीएनए के माइक्रोस्कोप के अंदर उसको अच्छा जो प्रोफेज के स्टेज में है या मेटाफेज के स्टेज में है उसका फोटो लिया जाता है। कैसे अरेंज कैसे किया जाता है मैं हम आपको बता रहे हैं। तो उसको पहले फोटो लेते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर, ये स्पेशल माइक्रोस्कोप रहता है, फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोप। पूरा जो डीएनए है, क्रोमोसोम्स है, बड़ा कलरफुल दिखाई देता है, ठीक। उसको माइक्रोस्कोप में फोटो ले लिए, फोटो लेने के बाद डिजिटली कंप्यूटर में क्या करते हैं, वो जो क्रोमोसोम्स हैं साइज के अनुसार उनको अरेंज किया जाता है। तो हम लोग को पता है कि 46 क्रोमोसोम्स आर देयर इन ह्यूमंस, ओके, सोमैटिक सेल, यानी नॉर्मल सेल में 46 क्रोमोसोम्स हैं, जिसमें कि 23 क्रोमोसोम्स मदर की तरफ से आए हैं और 23 क्रोमोसोम्स फादर की तरफ से आए हैं, इसीलिए टोटल 46 क्रोमोसोम्स बने, करेक्ट। तो ये जो 23 क्रोमोसोम्स मदर की तरफ आए, 23 फादर की तरफ आए, बोथ आर इक्वल दे हैव कम, नो। क्रोमोसोम 1, एक क्रोमोसोम 1 मदर की तरफ आया, एक क्रोमोसोम 1 फादर की तरफ से आया, ओके, समझ गए आप? Any doubt you have in this one? Tell me. Not clear? सर क्लियर। कुछ डाउट है इसमें, नहीं समझ में आ रहा है, पूछिए पूछिए, इसको क्लियर कर लीजिए, ठीक है। हर क्रोमोसोम जो है सेल में एक कॉपी मदर की तरफ से आता है, एक कॉपी फादर की तरफ से आता है, सिंपल एज दैट। इसीलिए
हर क्रोमोसोम का 2-2 कॉपी रहेगा एक नॉर्मल सेल में, ठीक। सो मतलब मियोसिस में भी जैसे माइटोसिस में सर उससे पहले इंटरफेज होता था, तो मियोसिस में भी इससे पहले इंटरफेज होता होगा। हाँ, इंटरफेस तो सभी में रहेगा, जहां जहां सेल साइकिल है वहां इंटरफेस रहेगा। इंटरफेस जो है वो नथिंग बट प्रिपरेटरी फेस है कि सेल डिवाइड करने के पहले अपने आप को तैयार कर रहा है, बस उतना ही है इंटरफेस। वो माइटोसिस हो या मियोसिस हो, दोनों में होगा। और तो फिर उसके बाद प्रोफेज मेटाफेज ये सब भी होगा ना मियोसिस में। हाँ, मियोसिस में भी प्रोफेज मेटाफेज ये सब चीज होगा, लेकिन जो आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 17 इन योर टेक्स्ट हाँ बुक, ओके, आप उसमें हाँ, yes। देखिए, उसमें बनाया गया है और उसमें बताया गया है एक्स्ट्रा एक फिगर बनाया गया है। हाँ, नॉट इन सिलेबस। हाँ, ये है, इसमें आपको बस उसके डिटेल में बताया गया कि फर्स्ट जो है 2n क्रोमोसोम्स था, ओके, नॉर्मल, वो जो है अरेंज हुआ आपस में, साइड बाय साइड ऐसे करके अरेंज हुआ। एक ब्लू कलर का है और एक येलो कलर का है, आप देख रहे हो ना, टेक्स्ट बुक में ध्यान दीजिए, फिगर 2.11 सब लोग देख रहे हैं क्या? Okay, all of you look figure 2.11 in your textbook. सर पेज नंबर 17. ओके, सबका खुल गया पेज 17? यस सर। यस सर। चलिए, अब इसमें आप ऑब्जर्व कीजिए कि येलो कलर के क्रोमोसोम्स हैं और ब्लू कलर के क्रोमोसोम्स हैं, ठीक। अब ये जो सबसे ऊपर वाला जो सेल दिखाया गया है 2n, इसमें ये हमको बताइए कि टोटल कितने क्रोमोसोम्स हैं? सर टोटल है 6 क्रोमोसोम से, 3 मेल का है और 3 फीमेल का। ब्लू कलर से शायद फीमेल है और जो भी है, 3 दोनों मेल। ऑपोजिट, हाँ कमिंग फ्रॉम ऑपोजिट हाँ, दिस वन, ओके। टोटल 6 क्रोमोसोम्स और और जिसमें से एक एक क्रोमेटिड है सब में। हाँ, 6 क्रोमोसोम्स है और 6 क्रोमोसोम्स जो है हर का एक पेयर है। देखिए, जैसे कि एक बहुत छोटा जैसा क्रोमोसोम है, तो एक पीला वाला भी छोटा जैसा क्रोमोसोम है, एक ब्लू वाला भी छोटा क्रोमोसोम है। एक बड़ा लंबा वाला येलो क्रोमोसोम है, तो एकदम उसी के जैसा एक लंबा वाला ब्लू क्रोमोसोम भी है ना। तो इस तरीके से जो है हर एक का पेयर भी रहेगा। सो दीज आर कॉल्ड एज व्हाट यू से homologous pairs. Homologous pairs. ओके, क्योंकि ये दोनों एग्जैक्टली दे आर द सेम, एक्सेप्ट डिफरेंस इज व्हाट, दिस इज कमिंग फ्रॉम द मदर साइड, दिस इज कमिंग फ्रॉम द फादर साइड, इसीलिए थोड़ा सा फर्क रहेगा, ओके। लेकिन दोनों ही क्रोमोसोम 1 है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, होमो यानी सिमिलर, एक जैसा, लोगस यानी फंक्शन, होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स, ओके, these are homologous pair of chromosomes. सर क्रोमोसोम्स का रिकॉम्बाइनेशन जो है वो तो मियोसिस के टाइम पे शुरू हो जाता है ना, जब वो क्या बोलते फादर सेल से लेता नहीं है। तो ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स है, ये दोनों क्या हम बोल सकते हैं आइडेंटिकल है? आर दे आइडेंटिकल? सर दे आर सिमिलर बट नॉट द सेम। है ना, एक मदर की तरफ से एक फादर की तरफ से, दोनों सिमिलर है, हाँ आइडेंटिकल नहीं है, दोनों में थोड़ा सा हाँ फर्क है ना।
तो अब जब दोनों क्रोमोसोम क्या कर रहे हैं, आप देखिए उसके नीचे वाला फिगर जो है, क्या हो गया, जो एक जैसे क्रोमोसोम्स हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम्स, इनका क्या हुआ, आपस में ऐसे सट गए, तो इसको क्या बोलते हैं, पेयरिंग। ओके, ये क्या हो गए, पेयर हो गए। तो होमोलोगस क्रोमोसोम्स दे गॉट पेयर्ड, so that is what we say pairing of homologous chromosomes. सो जो ये मतलब जो फिगर जो अभी एक्स्ट्रा वाला है, इसमें जो स्टार्टिंग फिगर है जो वो आपका ये मियोसिस वाले में है। ये जो ऊपर का दो फिगर है, हाँ ये कंप्लीट फिगर आपका मियोसिस का ही है। हाँ, देखिए, तो सर जैसे माइटोसिस में इंटरफेज में ही जो डीएनए आपका मतलब दो क्रोमैटिड्स आ जाता था सिंगल से, जब सिंथेसाइज होता था, तो यहाँ पे सर ये सिंगल क्रोमैटिड सब का है, यहाँ पे भी सर इंटरफेज में जाता तो सिंथेसाइज होके सर दो वो आता। हम्म तो इधर जो है आपको लग रहा है कि एक ही क्रोमैटिड है, यही ना, हाँ हाँ, ये येलो कलर तो ऊपर, एक ही है हाँ, ना सर। ऊपर में एक ही है 2n, फिर उससे नीचे आए। हम्म। Okay, here what happen is, you see they are just getting paired, and then, हाँ ये सर। okay, and then the third figure what is happening, फर्स्ट डिवीजन का शुरुआत होने वाला है। हम्म। तो इधर उसने क्या किया, डबल करके दिखाया, क्रोमैटिड में सिस्टर क्रोमैटिड्स दिखाया ना। हाँ। ओके, फर्स्ट डिवीजन वाला जो डब्बा, डैश्ड लाइन वाला डब्बा है, उसके अंदर जो फर्स्ट सर्कल है, उसमें उसने दिखाया टू क्रोमैटिड्स विथ सिस्टर क्रोमैटिड्स ही हैज शोन। हम्म। Okay, so here what has happened, the DNA it got doubled. हाँ सर। Okay, because first stage is what, mitosis. हाँ। In mitosis, before the starting of the mitosis, the DNA has to get double. ठीक है, ये जो आपका है 100% डिटेल्ड फिगर नहीं है, लेकिन आपको इतना आपको इसमें आ रहा है कि देखिए, जो डिवीजन 1 शुरू होने के पहले सिंगल क्रोमैटिड है, जब डिवीजन शुरू हो गया उसके पहले तो इसको डीएनए डबल कर लेना है। बिना डीएनए डबल किए हुए, इफ इट गो फॉर द माइटोसिस, व्हाट विल हैपन, हम्म। okay, see here, what is happening is, we should not confuse, since this particular part of your chapter, because I am telling you, in this chapter 1 cell division, what happens, most of the students, they are getting very confused in the meiosis part, और आपको मियासिस है ही नहीं उतना सिलेबस में, मियासिस थोड़ा कंफ्यूजिंग है भी। ओके, क्लास 10 में इंट्रोडक्शन है केवल मियासिस का, और माइटोसिस और मियासिस का कंपैरिजन है। मियासिस को अगर आप प्रॉपरली जानना चाहते हो तो एक सेपरेट चैप्टर में उसको पढ़ना पड़ेगा, है ना। इसीलिए जो there are a few things, okay, curiosity is okay, but there are a few things we should avoid, and we should give more focus to एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू, जो ज्यादा जरूरी है उस पे हम लोग को समय देना चाहिए ज्यादा, है ना। यहां जो है आपके मियासिस के अंदर इंपॉर्टेंट 3 पॉइंट्स हैं। नंबर 1, 4 सेल्स बनेंगे, दूसरा क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है, और तीसरा कि इसमें क्रॉसिंग ओवर होता है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स का क्रॉसिंग ओवर होता है। ओके, सो क्रॉसिंग ओवर ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम्स। ओके, ये जो है ये आपका थर्ड पॉइंट है। मियोसिस में क्या बताया, ओनली 3 पॉइंट आपको ध्यान देना है। नंबर 1, 4 सेल बनते हैं,
Number 2, number of chromosomes is n, haploid. Okay, and number 3 is there is the crossing over of homologous chromosomes. homologous chromosomes आप समझ गए. Okay, let me ask. Homologous chromosomes, all of you have understood. Harshit, did you understand homologous chromosome? The little bit problem. अगर हम ये बोलें कि फॉर एग्जाम्पल क्रोमोसोम 2 है, ओके, तो क्रोमोसोम 2 में कितने क्रोमोसोम्स मिलेंगे सेल के अंदर? नॉर्मल सेल के अंदर एक ही क्रोमोसोम 2 मिलेगा कि 2 क्रोमोसोम 2 मिलेगा? नॉर्मल सेल, सोमैटिक सेल में एक. हाँ, देखो सोमैटिक सेल में क्या है, 2n है. 2n का क्या मतलब होता है? 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स हैं. ठीक है, यानी एक जो नॉर्मल पर्सन है उसका क्या है, बॉडी में आधा क्रोमोसोम मदर की तरफ, आधा क्रोमोसोम फादर की तरफ है. आधा आधा का क्या मतलब हुआ? क्रोमोसोम का आधा टुकड़ा नहीं होता है. बहुत बच्चे ये सोचते हैं कि क्रोमोसोम का आधा टुकड़ा उधर. आधा टुकड़ा नहीं, समूचा क्रोमोसोम, पूरा क्रोमोसोम आएगा. ओके, जैसे क्रोमोसोम 1 है, एक पूरा क्रोमोसोम 1 मदर की तरफ से आता है, एक पूरा 1 क्रोमोसोम फादर की तरफ से आता है. Okay, you are getting my point. So the new individual that is formed, that is what? Diploid, यानी 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स हैं. और गैमिट्स में कितना क्रोमोसोम है? फॉर एग्जाम्पल इन एग सेल एंड स्पर्म सेल, हाउ मेनी क्रोमोसोम सेट्स आर देयर? इज इट हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स और डबल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स? सर हाफ नंबर इन गैमेट में. हाफ नंबर रहता है. ओके, इसीलिए ना इट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड. यू सी, सर अभी जो आप बोले मतलब कि एक क्रोमोसोम पूरा समूचा आता है पेरेंट, ये मदर और फादर से, तो सर उसमें एक क्रोमाटाइड रहता है ना दोनों में? देखिए ये जो क्रोमैटिड है ना, क्रोमोसोम जो आपको प्रोफेज में दिखाई दे रहा है, प्रोफेज से शुरू होता है दिखाई देना, हमेशा तो वैसा नहीं रहता है. वो तो आपको इंटरफेस में थ्रेड के जैसा रहेगा. हाँ, अलग अलग स्टेजेस में क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर बदल रहा है. करेक्ट. लेकिन जब हम लोग ड्रॉ करते हैं ना, तो हम लोग ज्यादातर यही डायग्राम प्रिफर करते हैं बनाना, क्योंकि एक स्ट्रक्चर दिखा सकते हैं ना. ऐसे ऐसे करके दिखाओगे तो क्या समझ में आएगा? इसमें कुछ नहीं आता. एक समूचा क्रोमोसोम या क्रोमैटिड, ओके, क्योंकि देखो ये अगर ऐसे बना दिए तो क्या हो गया, ये डीएनए डबल होने के बाद ये वाला दूसरा बना. करेक्ट. हाँ ये एक क्रोमोसोम है कि 2 क्रोमोसोम है? सर एक क्रोमोसोम. दिस इज ओनली 1 क्रोमोसोम. ओके, you can say 1 chromosome. Okay, it is having how many chromatids? सर 2. 2 chromatids are there. Okay, this is 1 chromosome with 2 chromatids. Okay, and the other one, these both are exactly okay similar, identical, because ये डबल हुआ, डीएनए डबल बन के ये वाला क्रोमैटिड बना. ओके, इसीलिए इसको सिस्टर क्रोमैटिड बोलेंगे. तो ये अगर क्रोमोसोम 1 है, अच्छा, एक सेट मदर की तरफ से आया, एक और क्रोमोसोम 1 रहेगा जो फादर की तरफ से आया. ठीक है, ये भी प्रोफेज में देखोगे तो ऐसे ही दिखेगा, सेम. यानी इस टाइप के जो हैं, क्योंकि ऐसे 4 आर्म्स आर देयर, सो वी कैन आल्सो कॉल देम एज
रिवाइज कीजिए टेट्राड, ओके 4 है हाँ ना, यस 4 chromatids are there, therefore they are known as tetrad. Okay, now you see ओके डोंट देखिए 2 टाइप है, एक आप अपना दिमाग ज्यादा जोर मत डालो, इसमें मेन चीज आपको क्या करना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जो कि आप बहुत सारी चीज भूल भी सकते हो, दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ चीज आप नहीं भूल सकते हो, वो इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर ध्यान देते हैं। ये क्या है, ड्यूरिंग द पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम्स इन मियोसिस द डैश क्रोमोसोम्स कम टू लाई साइड बाय साइड, ओके, यानी ये एक जो मदर सेल की तरफ से आया और एक क्रोमोसोम जो फादर की तरफ से आया, ओके, दीज बोथ आर होमोलोगस क्रोमोसोम्स। ये दोनों मियोसिस में क्या होगा कि एक दूसरे के साइड बाय साइड ओवरलैप होगा, ओके, तो ये साइड बाय साइड ऐसे ओवरलैप होगा, यहां ओवरलैप हो रहा है। तो इसको एकदम और जूम करके जब हम लोग देखते हैं जहां ओवरलैप हो रहा है, वहां पे क्या होता है, डीएनए का एक्सचेंज हो जाता है, ओके, डीएनए का एक्सचेंज होने के कारण क्या होता है कि नया नया कॉम्बिनेशन बन जाता है। इसीलिए किसी भी पेरेंट्स का जो यू हैव द किड्स, okay, the offsprings, they are not exactly identical also, no, to the parents, there is always some mixing will be there, okay. For example, if both the parents are having say one is having blue eyes, one is having brown eyes, okay, so it is not necessary that you will always get either brown or blue, you may get something in between also, okay. मिक्सिंग ऑफ द डीएनए ऑल्सो टेक्स, मिक्सिंग ऑफ डीएनए होता है। तो ड्यूरिंग द पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम्स इन मियोसिस द होमोलोगस क्रोमोसोम्स कम टू लाई साइड बाय साइड, ठीक है, ये दोनों आपका फिगर 2.12 है ना, पेज नंबर 17, ओके, वो सिलेबस में है, वो एक्स्ट्रा वाला सिलेबस में नहीं है, 2.12 सिलेबस में है। तो यहां पे आप देखिएगा येलो और रेड क्रोमोसोम दिखाया गया, ठीक है, इसमें क्या हुआ, एक्सचेंज हुआ एक छोटे से पीस का, ओके, मैटरनल और पैटर्नल क्रोमोसोम के बीच में एक्सचेंज हुआ और जिसके कारण नया कॉम्बिनेशन बना क्रोमोसोम का, ओके, दैट इज द एक्सचेंज ऑफ द क्रोमैटिड्स। दिस वन यू हैव अंडरस्टूड? सर मैटरनल तो कोई फादर या मदर को कोई कर रहा है ना, मैटरनल मैटरनिटी लीव, ओके, मदर साइड, M for mother, M for maternal, पैटर्नल फादर साइड, ओके ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टू, सर एक डाउट था सर मेरा, सर अगर ट्विंस होता है जिसका दोनों का चेहरा सेम हो तो दोनों का फिंगरप्रिंट से मोबाइल खुल जाएगा? हाँ, if that there are the twins, okay, the twins they can be the identical twins also, okay, okay, in very brief we will, रेटिना स्कैन करेगा तब नहीं हो पाएगा। so सर फिंगरप्रिंट तो सेम हो जाता होगा। फिंगरप्रिंट का नहीं पता, रेटिना का तो नहीं होगा सर सेम। you see there are two things, one is identical twins also, twins, all twins are not same, all twins are not identical. So after there is the fusion of the egg and the sperm, okay, the zygote is formed, the zygote will have whatever that DNA composition, वही डीएनए कंपोजिशन के साथ वो जाइगोट डिवाइड होके बहुत सारे सेल्स बनते जाएगा, एम्ब्रियो बनेगा, कंप्लीट ह्यूमन बीइंग बनेगा, करेक्ट, इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम जाइगोट, बट समटाइम्स व्हाट हैपेंस दैट दिस फर्स्ट डिवीजन जो रहता है, वो जो जाइगोट बना, वो डिवीजन वो जाइगोट बनने के बाद वो एक बार डिवाइड होके अलग हो जाता है, या पूरी तरीके से अलग भी नहीं होगा,
तो भी क्या होगा, ये दोनों इंडिविजुअल अलग अलग एम्ब्रियो बन जाता है या बेबी के रूप में बन जाता है। तब क्या होगा, दोनों का सेम डीएनए आ रहा है, एकदम सेम जगह से आ रहा है, तब व्हेन वी से दैट इट इज अ आइडेंटिकल ट्विन। ओके, आइडेंटिकल ट्विन। इवन आइडेंटिकल ट्विन्स, their fingerprint may be different because fingerprint does not depend 100% on the DNA. फिंगरप्रिंट का बनना केवल डीएनए के ऊपर निर्भर नहीं करता है। ओके, फिंगरप्रिंट आप किस तरीके से अपने हाथ को यूज करते हो, नहीं बोलते कि मैं अपने हाथों की रेखा अपने से बनाता हूं, अपना मेहनत से बनाता हूं। ओके, कोई हाथ देख के बोल दिया अरे तेरा तो बड़ा मुश्किल है, आप मेहनत करोगे आपका हाथ का रेखा आप उसको बदल सकते हो। सो दैट इज सिमिलर विद दिस फिंगरप्रिंट्स। ओके, एवरीथिंग डज नॉट डिपेंड ऑन द डीएनए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टू नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ ए पेयर्ड क्रोमोसोम, क्वेश्चन को समझिए, द टू नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स of a paired chromosome are attached to each other at dash during the process of crossing over। ये क्रॉसिंग ओवर हो रहा है। ओके, सर चाइस्मा हाँ कुछ ऐसा ही है ना? हाँ, ओके, सो the two sister chromatids of a paired chromosome are attached to each other at the chiasma। ओके, यही फिगर में chiasma। आपका कैपिटल में लिखा हुआ है, 2.12 फिगर में लिखा हुआ है कायास्मा, CHIASMA, कायास्मा। ओके, ये नाम आपको रटना पड़ेगा, ठीक है, ये इसमें कोई ये नहीं है। ओके, तो इसका मतलब लेकिन आप समझ जाइए कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, एक ईच फ्रॉम द डिफरेंट पेरेंट। ओके, and what is happening, crossing over is taking place। Okay, the place where exactly the crossing over is taking place, that is known as the chiasma। Okay, chiasma कहाँ हुआ अम्मा, chiasma, something you try to remember like that। Okay, where the crossing over कहाँ हुआ, crossing over chiasma में हुआ। Okay, next, what is the difference between chromatin fibers and chromosomes? Who is going to answer? Sir, I will answer. Tell अच्छा, Prince। बोलो। Sir, chromatin fibers are fiber-like structure in the nucleus before mitosis phase, means in synthesis phase when DNA duplicates, chromatin fibers are duplicated, and and chromosomes are only seen in prophase. सर अब Anyone else? बताता हूँ। Yes, Jay, you want to answer? Sir, so the chromatin fibers are it consists of materials like DNA and genes are contained by chromatin fibers, and chromatin fibers when condensed they form chromosomes. Okay. Anyone else? Answer should be perfect। सो देखिए, आप दोनों समझे हो, आपको पता है क्या है, लेकिन आपने जो आंसर दिया ना उस पे आपको जैसे कि ये अगर 1 मार्क या 2 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है। ओके, आपको इसमें एक भी मार्क नहीं मिलेगा। क्यों? क्रोमैटिन बोलते ही आपको क्या बोलना है, डीएनए प्लस प्रोटीन। विच प्रोटीन? हिस्टोन। ओके, हिस्टोन। एंड क्रोमोसोम को क्या बोलेंगे?
condensed form. Okay, so one of you can just think about it, form your answer, and just give me 1 minute. Okay, and you tell me the answer. Yes, so who want to answer? देखिए, तो आपको किस तरीके से बोलना है? क्रोमैटिन इज डीएनए प्लस प्रोटीन. Okay, that is histone. Okay, and what is chromosome? It is the condensed form of the क्रोमैटिन. ओके, क्योंकि देखिए क्रोमोसोम आपका फिगर है, टेक्स्ट बुक में फिगर है 2.5. 2.5 फिगर में बताया गया ना, डीएनए, न्यूक्लियोसोम, क्रोमैटिन, सबसे ऊपर क्रोमैटिड है, और क्रोमैटिड के नीचे वाला ऑर्गेनाइजेशन क्या है? क्रोमोसोम. ऐसे करके बताया. क्रोमोसोम लाइक सबसे बड़ा वाला क्या दिखाया गया? ऐसे ऊपर में क्रोमैटिड दिखाया गया ऐसे. Individual ones are called chromatid, and this whole thing is called the chromosome. And this chromosome is again made up of what? Chromatin. Okay, ये आपका figure 2.5, इसको देखिए. So what you will tell, chromosome is the condensed form of the chromatin. And what is chromatin? The DNA plus protein, that is the histone. Okay, ये आप पहले बोलेंगे. ये बोलने के बाद जो भी आपने बोला कि क्रोमोसोम जो है वो सेल डिवीजन या माइटोसिस में दिखाई देता है, प्रोफेज से दिखना शुरू होता है, ठीक है. एंड क्रोमैटिन ड्यूरिंग इंटरफेस वी आर एबल टू ऑब्जर्व द क्रोमैटिन. ऑल these points you can add. Okay, you can add this. But if you don't say these 2 points and you are telling all other points, that is also problem. Okay, you are getting what I am telling, no? All of you are following? Yes, sir. हाँ प्लीज. ओके, इसको हम लोग इस तरीके से ध्यान देंगे. क्वेश्चन का आंसर आप लोग को पता है, लेकिन आंसर हम लोग को कैसे करना है एग्जाम में, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर दी रंग्स ऑफ द डीएनए लैडर मेड ऑफ? ये रंग्स मतलब नथिंग बट वो जो सीड ही बोलते हैं एक टाइप का. तो इट लुक्स लाइक ए स्टेयरकेस, नो? सो व्हाट इज दैट लैडर? इट इज मेड अप ऑफ सर फॉस्फेट का बनता है, शुगर का बनता है, और only one term is there, that you tell first. सर एक टर्म है जो बीच वाला रहता है ना, तो सर हाइड्रोजन बॉन्ड से होता है सर, नाइट्रोजन बेस से मतलब. अरे हाँ सर, नाइट्रोजन बेस से होगा सर एडेनाइन. सर न्यूक्लियोटाइड्स होता है क्या? अरे हाँ, न्यूक्लियोटाइड. हाँ, न्यूक्लियोटाइड. हाँ, ये तो होल सर हो गया. हाँ, वो पूरा वो जो स्ट्रक्चर है वो पूरा लैडर है न्यूक्लियोटाइड. व्हाट इज द न्यूक्लियोटाइड मेड अप ऑफ? वो तुम बताते जाओ. फॉस्फेट है, शुगर है, डीऑक्सी राइबो शुगर होता है, नाइट्रोजन बेस होता है. ओके, ऑल दिस थिंग्स. बट दिस टर्म इज क्रिटिकल. ये टर्म पे ही आपको नंबर मिलेगा, न्यूक्लियोटाइड. ये न्यूक्लियोटाइड भी रिपीटिंग क्वेश्चन है. या तो 1 मार्क में आएगा, या ये पूछा जाएगा कि व्हाट इज द न्यूक्लियोटाइड मेड अप ऑफ. ओके, या इस तरीके से पूछा जाएगा फॉस्फेट, डीऑक्सीराइबो शुगर एंड नाइट्रोजन बेस, 3 of them are linked to each other to form dash. Okay, don't say DNA, you have to say nucleotide. Correct? तो न्यूक्लियोटाइड, व्हाट इज न्यूक्लियोटाइड आप लोग सब समझ गए. Nucleotide is phosphate group, okay, is linked to the
deoxyribose sugar, okay, and that is linked to the nitrogen base which is the adenine, guanine, cytosine, thymine. Okay, आप अपने टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 9 देखिए. ओके, पेज नंबर 9 सब लोग निकाले. यस सर. इसमें फिगर 2.3, फिगर 2.3 का जो ए पार्ट है, फॉस्फेट, शुगर एंड बेस, ये जो हिस्सा है यही रिपीट हो रहा है ना, बी में दिखाया गया, यही पार्ट रिपीट हो रहा है. और यही जो पार्ट जो रिपीट हो रहा है, जिसमें कि एक फॉस्फेट, एक शुगर और एक नाइट्रोजन बेस है, इसी को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड. Okay, each single DNA strand is composed of repeating nucleotide, okay, which has 3 components: phosphate, sugar, okay, nitrogen base. Okay, okay. I will take one small test because now we are almost closing this chapter. Now next what we will do is, all of you study this chapter textbook thoroughly, and I will take one exam. Okay, just like it will be questions from your previous board type of exams only. Whatever is there, you prepare well and you will solve, and let me see how you are answering that. Okay, we will do that in our this exercise in next week, so you revise this chapter. ओके, रीड फ्रॉम द टेक्स्ट बुक. डोंट हैव टू वरी टू मच अबाउट ये गाइड वो गाइड नहीं, बस ये सेलिना पब्लिकेशन जो आपको दिया गया है, बस वो वाला आप पढ़िए, वो वाला चैप्टर पढ़िए लाइन टू लाइन, बस है. करेक्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स फॉर मिस्टेक्स इफ एनी. द 4 नाइट्रोजन बेसेस इन द डीएनए आर ग्वाइनिन, थायमिन, एड्रिनलिन एंड साइटोसिन. से एड्रेनालाइन के जगह एडेनाइन होगा, और थाइमिन का स्पेलिंग गलत दिया है सर, THY हो, वाई THYMINE. ओके, THYMINE. ओके, और एडेनाइन का ADENINE. ADENINE, एडिनिन. ओके, तो ये जो है स्पेलिंग्स आर इंपॉर्टेंट. दिस 4 नाइट्रोजन बेसेस स्पेलिंग इज इंपॉर्टेंट, you have to remember. Next, genes are specific sequences of bases in a chromosome. Is So it not correct? bases, nucleotide. Nucleotides. Nucleotides. That is- हाँ, but sometimes this is also accepted. ठीक. So then तो ये करेक्ट है सर. हाँ, देखो DNA, when you say DNA consists of the repeating units of nucleotides. Nucleotides repeat होते जाएगा DNA में. जीन क्या होगा? जीन को हम लोग लिखते हैं, हमने इसके पहले बताया था कि AGCT, ऐसे करके रहेगा सीक्वेंस. ओके, तो ये यहाँ पे हम लोग फॉस्फेट और क्या शुगर को तो नहीं दिखा रहे हैं ना, केवल नाइट्रोजन बेस लिख के रखे हैं. तो जो जीन का जो सीक्वेंस होता है, so we are telling that it is a specific sequence of the bases on a chromosome, so that is also correct. A nucleotide is composed of a sulfate, a sugar and a nitrogenous base. फिर सल्फेट को बदल के फॉस्फेट होगा. Correct, phosphate. Next, nucleosomes are groups of cysteine molecules surrounded by DNA strands. Group of सर 16 गलत है, हिस्टोन होगा. हाँ हिस्टोन होगा. Histone protein molecules will be there. Okay, nucleosome. Okay, nucleosome यानी DNA will be coiled around the histone protein. हाँ so 8 histone proteins. If there are 46 chromosomes in a cell,
there will be 23 chromosome fibers inside the nucleus during interphase. So 23 chromosome. Once again you see एक बार question, देखिए। if there हाँ, are हाँ, 46 chromosomes in a cell, there will be 23 chromatin fibers inside the nucleus during interphase. सर 23 क्रोमोसोम फाइबर्स नहीं होगा, 46 सर क्रोमोसोम फाइबर्स क्रोमोसोम होगा। Yes, So they will 20 they will be in interphase, there will be chromosomes or chromatin. so chromatin. Chromatin, ये पार्ट करेक्ट है। इंटरफेस में क्रोमैटिन रहता है, माइटोसिस के टाइम में क्रोमोसोम्स रहता है ना। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, 23 क्रोमैटिन फाइबर्स आर देयर, बट रियली 23 क्रोमैटिन फाइबर्स आर देयर, 46 46 हाँ विल बी देयर नो। होगा, हाँ एक हाफ क्यों रहेगा? हाँ Sir, हाँ 23 pairs of chromatin fibers are हाँ, there. पैर लिखना चाहिए तब, हाँ पैर होगा। पैर होना चाहिए, या तो 23 पैर लिखो या 46 ही लिखो। ओके, दैट इज द मिस्टेक हियर। देखिए, सो इन 23 योर, क्रोमेटिन फाइबर को कट कर देंगे। हाँ, सो देखिए होता क्या है, आपके एग्जाम में ट्रू और फॉल्स टाइप का क्वेश्चन जब आएगा तो उसमें ये भी रहता है कि राइट द करेक्ट स्टेटमेंट, सो यू शुड अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। सो इवन यू राइट ट्रू और फॉल्स, यू वोंट गेट इवन 1 mark. Why? Because the question what it is telling, you rewrite the correct statement. Okay, so what you need to do, you have to rewrite that complete statement. Okay, then only you will get the marks. Next, mention whether the following statements are true or false. Give reason in support of your answer. As you grow from childhood to adulthood, your skin cells divide only to replace such cells that are lost from the surface. सर फॉल्स, नो सर, सर रिपेयर के साथ साथ ये सर वो भी करता है, क्या बोलते हैं, Yeah, here it is telling रिपेयर के साथ रिप्लेस भी करता है। replace as well as repair. हाँ Okay, so both things will take place. As you grow from childhood to adulthood, your skin cells divide not only to replace but also to repair. Okay, some of the whatever damage may be there. Okay, new cells have to form, all these things will take place. Okay, nuclear membrane in a mitotically dividing cell remains intact up to the metaphase and disappears only in the telophase. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कब डिसअपियर होता है? प्रोफेस में डिसअपियर होता है कि मेटाफेस में? सर प्रोफेज में। प्रोफेस, पक्का? यस सर। Sir, हाँ पक्का, question pardon कीजिए तो। हाँ द पक्का सर, प्रोफेज में होता है। the nuclear membrane, when it is going to disappear? Okay, in prophase. in prophase the chromosomes formation is there. Okay, chromosome formation is there. As per your textbook, it is given very clearly, the nuclear membrane and nucleolus, both of them will disappear in prophase. Okay, so this one will be false. Okay, and from prophase, okay, it will happen. Prophase, from prophase, nuclear membrane will get disappear. Mitotic cell division can be a mode of reproduction. Nice question. Can mitosis be a mode of reproduction? सर एनिमल्स का तो नहीं पता, लेकिन प्लांट्स में सर डोमेटिक सेल्स ही यूज होता है नया प्लांट रीजनरेट करने के लिए।
मतलब अधिकतर केस मतलब साइंटिफिकली आर्टिफिशियली ग्रो किया जा सकता है नया प्लांट। तो इसमें होगा तब मतलब एक के पेरेंट उसका सारा उसका जेनेटिक मटेरियल सब आएगा, सबका नहीं आएगा, मतलब कि दोनों का नहीं आएगा। See, reproduction means what? There should be two parents, or if there is one parent also, okay. सर आई थिंक इट्स दो पेरेंट्स नेसेसरी है सर। तो फ्लावर में भी सर पॉलन और क्या पॉलन जाता है ओवरी में और फर्टिलाइज होता है। So, in reproduction, for reproduction, there is a bacterial cell. Okay, one bacterial cell is forming two bacterial cells. Okay, is it reproduction or not? Okay, it is also reproduction, no? यस सर। So this is asexual reproduction. Okay, sexual reproduction, asexual reproduction. Asexual reproduction means there will be only one parent. In sexual reproduction, there will be two parents. Okay, so new combinations you can always get new combinations. So survival will be better. Okay, that is the advantage. So here when we are telling mitotic cell division can be a mode of reproduction, yes, it can be. Yes, it can be true, because one cell giving rise to more than one cell, okay, it is dividing to give, is also a mode of reproduction. Crossing over between chromatids can occur only between homologous chromosomes. सर ट्रू। True. Okay, in meiosis there is crossing over. Yes sir, in meiosis only there is crossing over. Crossing over of what? Homologous chromosomes. Yes. Okay, okay, but not between non-homologous chromosomes. So chromosome 1, okay, and chromosome 3 or chromosome 4, they cannot come and align like this to each other and exchange the DNA. That will not take place. Chromosome will always exchange DNA with chromosome 1 only between the homologous chromosome. That is what we say. Not chromosome 1 with chromosome 5. Because chromosome 1 and chromosome 5 are they homologous? They are सर not होमोलोगस का मतलब सिमिलर होता है ना। similar. So chromosome 1 that is coming from mother, chromosome 1 that is coming from father are homologous to each other, है ना। लेकिन क्रोमोसोम 1 और क्रोमोसोम 5 बहुत ही अलग है। इसका डीएनए पूरा अलग है और क्रोमोसोम 5 का डीएनए पूरा अलग है। वो दोनों होमोलोगस कैसे हो जाएगा? लेकिन एक क्रोमोसोम 1 फॉर एग्जांपल मदर से आया, क्रोमोसोम 1 फादर से आया, दोनों एक ही साइज का, एक ही मोटा मोटी एक ही सीक्वेंस का रहेगा। थोड़ा सा सीक्वेंस में फर्क रहता है, थोड़ा सा। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि दोनों होमोलोगस है, इसीलिए वो दोनों आपस में पेयर कर सकता है। करेक्ट। तो क्रॉसिंग ओवर विल अकर ओनली बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम्स। ठीक है। सो we will continue in the, if you have any doubts you can ask, we will continue in the next class. सर कल क्लास होगा? नहीं, संडे नहीं, संडे क्लास नहीं करेंगे।